सो व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़? शेडोज़ क्या होते हैं? जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि ये सपोज़ लाइट जा रही है, उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो लाइट तो जा नहीं पाएगी यहाँ से, है ना। और यहाँ पर पीछे जो है, बाकी यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से भी जाएगी। तो क्या होगा कि ये वाला आकार जो है बन जाएगा जिसमें से लाइट नहीं जाएगी, और लाइट नहीं जाएगी तो मेरे हाथ का एग्जैक्ट शैडो पीछे पड़ेगा। जैसे ही मैं हाथ हटा लूँगा तो मेरे हाथ की परछाई चली जाएगी, क्योंकि अब सीधी लाइट जा रही है। जितने में लाइट नहीं जा रही है उतने में अंधेरा हो जाएगा, वो शैडो कहलाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। इसका मतलब ये होता है कि 3 या 4 बल्ब अलग अलग जगह लगे पड़े हैं। अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ बल्ब लगा है तो यहाँ का शैडो जाएगा पीछे, यहाँ बल्ब लगा है उसका शैडो पड़ेगा इधर, सामने बल्ब लगा है उसका शैडो पड़ेगा इस तरफ। तो आप एक है लेकिन 4 तुम्हारे शैडो पड़ेंगे अलग अलग, है ना। है हाँ, गौवारो। सो इस तरह से तुम्हारे 4 शेडोज पड़ सकते हैं, राइट। नाउ वन by one hold each one of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. Figure 11.2. See. Spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground, and ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw the outline of the shadow of the other object in a similar way. Now ask some of your friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are there able to identify the correctly? Do you observe your shadows in a dark room or at night when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in the room? It seems we need a source of light and an opaque object to see the shadow. Is there anything else required? अभी देखो कि आपके पास एक खिलौना है जिसका हाथी है, समझ लो खिलौने का हाथी है। अभी हाथी को पेपर के ऊपर यूँ रखो, राइट, और यहाँ से टॉर्च की लाइट डालो, तो टॉर्च की लाइट का शेडो कहाँ पड़ेगा? शेडो कहाँ पड़ेगा? हाँ, पेपर पे, है ना। अभी वो लाइट चालू रखो, जहाँ पर आपको शेडो दिखता है वहाँ से पेंसिल से आउटलाइन कर दो शेडो की, ठीक है। और फिर तुम्हारे फ्रेंड को बताओ ये किसका फ़ोटो है, तो देख के बता पाएगा कि हाथी का है। हाँ, हम लोग देखो दीवार पे ऐसे करते हैं कभी, है ना, और पीछे हमको दिखता है कि कुत्ता या हिरन, ऐसे ऐसे करके देखते थे, या फिर ऐसे करते हैं तो बर्ड्स बनते हैं। बैठो 5 मिनट। सो हाउ शेडोज आर फॉर्म, मिल गया ना आपको, कि कोई भी ड्राइंग आपको करनी है तो पेपर शीट के ऊपर वो चीज़ रख दो और लाइट का शॉर्ट डालो तो उसका शेडो पड़ेगा पीछे, तो पेंसिल से आउटलाइन बना दो तो आपका वो ड्राइंग बन जाएगा। तो शेडो हमेशा, जो ऑब्जेक्ट है, अपने हाथी खड़ा रखा है और शेडो डाला है तो सांप का शेडो नहीं बनेगा, बनेगा। तो शेडो बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें? एक टॉर्च और एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं जाती। कोई ट्रांसपेरेंट वस्तु रख दोगे तो उसकी परछाई पड़ेगी नहीं, क्योंकि लाइट उसमें से आर पार निकल जाएगी, है ना।
In activity 3, there is an activity that you will have to do in the dark in the evening. Go out in an open ground with a few friends, take a torch and a large sheet of cardboard. Hold the torch close to the ground and shine it upward so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an object. If there were no trees, buildings, or any other objects behind you, friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend. The shadow now can see the cardboard sheet. Thus, the shadow can be seen only on a screen. The ground, walls of a room, a building, or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life. Shadows gives us some information about the shapes of the object, and sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object. In figure 11.4 are few shadows that we are create with our hands and can make believe that they are shadows of different animals and have fun. तो शेडो बनाने के लिए तुम्हें एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. अंडरस्टूड? शेडो के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए कोई, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हमारा शेडो पड़ेगा. फिर वो कपड़ा हो तो भी चलेगा, राइट? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अपने हाथों को अलग अलग शेप दे के शेडोज़ करते हैं, राइट? तो शेडो कभी कभी जो है ना हमको वो मिसगाइड भी कर सकते हैं. अगर कहीं रस्सी लटक रही है हवा में और उसका शेडो दीवार के ऊपर पड़ रहा है तो रस्सी तुमको यूँ हिलती हुई दिखेगी ना, और अगर रस्सी में नीचे गांठ बांधी हुई है तो तुम्हें तो यूँ ही लगेगा कि सांप उल्टा लटक रहा है कि नहीं? तो समटाइम्स शेडो मिसलीडर्स, हमको भ्रम कर देते हैं. फिर जब पास जाके देखते हैं तब पता चलता है वो सांप नहीं था, रस्सी थी. उसी तरह यहाँ पर फिगर में देखो 11.4 में बटरफ्लाई बनाया, पिजियन बनाया, हॉर्स, कैमल. देखो उंगलियों को ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसा शेप बनता है. So this is how you can create different shadows with the source of light, your hands and screen.